Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. I hope your studies are going well. As you know, I have completed all the chapters of class 12th with latest syllabus according to the latest curriculum of CBSE. If you are having any doubt, you can watch the playlist of any chapter. You can write it in the comment section to ask your doubts. I can provide you the link of all the playlists in the description of this video. Plus, you can check it out on my channel. Visit my channel. Plus, in the section of CBSE class 12, there you can find the playlist of all the chapters. Plus, I have completed all the important questions also. Plus, I have made my sample papers. That is in the playlist of sample paper. And I have also explained the CBSE sample paper also. In that CBSE sample paper, one question was there, that is question number 34. And I got requests from many of my viewers that they find it difficult in this question. So I thought, why not to make a separate video on this, just to clear my doubts for my viewers. And let me tell you one thing, that there is no such word difficult. कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, वो सिर्फ तब तक डिफिकल्ट है जब तक वो चीज आपको नहीं आती. एंड इस चीज की गारंटी मेरी, इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा. एंड डेफिनेटली यू विल से नाउ दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट अ फंक्शन L shift. Function name is given in the question. ARR and N. Two arguments are there. In Python, which accepts a list ARR of numbers and N is a numeric value by which all the elements of the list are shifted to left. That means मुझे elements को क्या करना है, left में shift करना है. Sample example is also given to you. The list is 10, 20, 30, 40, 12 and 11. And let's suppose I have entered the value of N as 2. तो मेरे जो elements हैं वो 2 position left पर shift हो जाएंगे. मीन्स जो ये 10 और 22 एलिमेंट्स हैं ये मेरे शिफ्ट हो जाएंगे मीन्स एट द राइट, और 30, 40, 12, 11 ये 2 पोजीशंस क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ. लेट मी जस्ट शो यू व्हाट वी हैव टू डू. सपोज दिस लिस्ट इज गिवन टू यू. द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू द इंडेक्सिंग ऑफ द एलिमेंट्स. Now tell me students, what is the length of this list? We have to count the total number of elements. 1, 2, 3, 4 and 5. So the length of this list is 5. ठीक है, from 0 to 4 indexing is there. Now we have to shift the elements. This 45 will be at index 0. Then 65 will be at index 1. Then 67 will be at index 2. Then 78 will be at index 3. And then this 23, this will be at index 4. ठीक है, this we have to do. और कितने एलिमेंट शिफ्ट होंगे, that part we will do later on because you know my method. हम क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, जो हमारा A0 पर जो एलिमेंट आएगा मीन्स आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, A0 पर जो एलिमेंट आएगा वो किस पोजीशन का आएगा, A1. दिस स्टेप इज क्लियर आई थिंक. एग्जाम्पल देखो बेटा, आफ्टर शिफ्टिंग A0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है दैट, ये पहले किस पोजीशन पर था बेटा, फर्स्ट इंडेक्स पर. तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो दैट मीन्स A1 इंडेक्स पर मेरे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, जो मेरा इंडेक्स A2 पर होगा. यही मेरे लेफ्ट में शिफ्टिंग हो रही है बेटा. तो अगर मैं सेकेंड इंडेक्स की बात करूं, दिस मीन्स सेकेंड इंडेक्स 65. ठीक है, A1 पर जो एलिमेंट है वो कौन से वाला आ रहा है, जो मेरा A2 पर था. इस तरीके से एलिमेंट राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट होंगे. अब इस चीज को हम जनरलाइज करेंगे बेटा. जनरलाइज इन द सेंस कि मैं इसको लिखूंगी सभी के लिए. दैट मीन्स अगर मेरा लूप I के लिए चल रहा है तो A ऑफ I इक्वल्स टू A ऑफ I प्लस 1.
इससे मेरे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं 0 1 को i कंसीडर कर रही हूँ, नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 1, दैट मीन्स i प्लस 1। 1 के केस में क्या है 2, दैट मीन्स अगर i 1 है तो नेक्स्ट विल बी i प्लस 1 दैट इज 2। सो दिस इज माई जनरल इक्वेशन नाउ टू शिफ्ट द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। अब एक चीज देखो, मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, कौन से इंडेक्स तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 78 तक मुझे अपना लूप चलाना है। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरे एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं, अगर मैं अपना लूप 78 वाले एलिमेंट तक चला रही हूँ, वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। एक एक एलिमेंट्स मेरे क्या हो रहे हैं, इसमें लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे अपना लूप एक कम तक चलाना है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन। डेफ फंक्शन नेम इज लेफ्ट शिफ्ट, लिस्ट नेम RRR, न्यूमेरिक वैल्यू अभी नहीं लेते कि हमने कितने एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, अभी सिर्फ 1 एलिमेंट के लिए करेंगे बेटा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट काउंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट। नाउ दिस लेंथ फंक्शन विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। अब जो बिगिनिंग वाला एलिमेंट है वो मुझे लास्ट में शिफ्ट करना है, तो बिफोर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स आई एम टेकिंग अ वेरिएबल विद नेम बिगिनिंग, और उसमें मैंने अपने लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट असाइन करा दिया। ठीक है, इस बिगिनिंग वाले वेरिएबल को हम बाद में यूज करेंगे टू शिफ्ट इट एट द लास्ट पोजीशन। नाउ फॉर i इन रेंज, अब मेरा लूप कहां तक चलेगा बेटा L-1 तक। अब ये चीज ध्यान से देखो, L की वैल्यू क्या है बेटा 5। ठीक है, अब जो मेरा लूप चलेगा 5 - 1 4। अगर मैं आपकी बात करूं यहां से, इस लिस्ट की लेंथ क्या है बेटा 5, 5 - 1 4, और अगर मैं यहाँ 4 लिख रही हूं तो दैट मीन्स मेरा लूप कहां तक चलेगा 3 तक। रेंज फंक्शन मेरा एक कम तक चलता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरे इंडेक्स की वैल्यूज आ जाएंगी वो कहां तक आ जाएंगी 3 तक, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होगा A3 में मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी बेटा A4 की। A4 में मुझे किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मेरा जो लूप चलेगा वो कहां तक चलेगा A3 तक, क्योंकि जब मैं लास्ट एलिमेंट की शिफ्टिंग करूंगी तो देन A3 पर क्या आएगा जो A4 की वैल्यू है, मीन्स जब I3 होगा तो I प्लस 1 4, तो दैट मीन्स मुझे अपना लूप कहां तक चलाना है बेटा इंडेक्स 3 तक। दैट मीन्स L की वैल्यू अगर 5 है तो 5 - 1 4, और 4 अगर मैं 4 यहाँ लिख रही हूँ तो बेटा तो रेंज फंक्शन एक कम तक चलेगा, दैट मीन्स वो कहां तक चलेगा 3 तक। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ कि वाई वी आर यूजिंग L-1। अगर फिर भी डाउट है तो बेस्ट थिंग इज यूज to do the dry run. Dry runs means with pen paper you can solve the values, उसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब मुझे क्या करना है, अपने एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। ARRi इक्वल्स टू ARR, जो मेरे लिस्ट का नेम है i प्लस 1, ये अभी हमने डिराइव की जनरल स्टेटमेंट एलिमेंट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मेरी जो लिस्ट का लास्ट इंडेक्स है दैट इज L-1। अगर मेरी लिस्ट की लेंथ क्या है बेटा 5, द लास्ट इंडेक्स इज 4, दैट मीन्स L-1। उस L-1 पर मुझे क्या चाहिए बेटा बिगिनिंग वाली वैल्यू। ठीक है, और ये चीज मैंने शिफ्टिंग से पहले क्यों करी, इस फॉर लूप से पहले। अगर इसको मैं बाद में करूंगी तो मेरा जो फर्स्ट 0 इंडेक्स पर एलिमेंट है दैट विल गेट चेंज, तो इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा फॉर लूप से पहले। अब क्या होगा, बिगिनिंग पर मेरा मीन्स जो बिगिनिंग वाला एलिमेंट है वो मेरे लास्ट इंडेक्स पर आ गया। नाउ वी जस्ट हैव टू प्रिंट द लिस्ट। अभी हम देखेंगे क्या ये एक एक एलिमेंट को शिफ्ट मीन्स एक एक पोजीशन शिफ्ट हो रही है या फिर नहीं। L शिफ्ट ARR, हमने यहाँ पर यूजर से एक लिस्ट एंटर करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ eval फंक्शन। एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, and here we are passing the argument L. ठीक है, now let me just execute this. Here I am taking the values. Let's suppose this is my list. अब ध्यान से देखो, जो मेरा सेकंड यहाँ पर बेटा फर्स्ट एलिमेंट है जो मेरा 0 इंडेक्स पर है, ये मेरा कहां पर आ गया लास्ट इंडेक्स पर। और किस स्टेटमेंट से आया लास्ट इंडेक्स पर बेटा विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हमने बिगनिंग इस जो 0 इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको हमने पहले एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया,
और उसको मैंने अपना लास्ट इंडेक्स पर प्लेस करा दिया। उसके बाद अगर आप बाकी एलिमेंट्स देखो तो दे आर शिफ्टिंग। 6 मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर था, अब किस पर आ गया 0, मीन्स A0 पर कौन सा एलिमेंट आया जो A1 पर था, A1 पर कौन सा आया जो A2 पर था, मीन्स AI इक्वल्स टू AI प्लस 1। अब ये 1 मीन्स एलिमेंट शिफ्ट हो गए 1 टाइम्स। अब क्वेश्चन में क्या है बेटा कि मुझे यूजर से एक और आर्ग्यूमेंट एंटर कराना है n, कि मुझे कितने टाइम्स शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, अब जितने टाइम्स मेरा ये लूप चलेगा उतने टाइम शिफ्टिंग होएगी। अब इसको हम जरा सा मॉडिफाई करेंगे बेटा। नाउ लेट मी जस्ट ओपन दिस। अब यहां से हम यूजर से एंटर करा लेते हैं वैल्यू ऑफ n int input how many elements to shift। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने यहां पर पास कर दी। ठीक है, जितने टाइम्स मेरे को ये शिफ्टिंग करनी हो उस टाइम एक लूप और लगा दें, फॉर i in range, or you can take any other variable also if you want, otherwise both will work। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमने ले लिया j in range, अगर आप सेम भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स टेक इट फॉर i in range। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 एंटर कर रही हूं तो ये मेरा लूप 2 टाइम्स चलेगा। अब आपने ये सारा क्या करना है, इसको शिफ्ट कर दो, मीन्स इसकी हम नेस्टिंग कर देंगे कि इंडेंटेशन कर देंगे। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये मेरा लूप है n की वैल्यू सपोज यूजर ने एंटर करी बेटा 2, तो एक बार ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी सारी। ठीक है, बिगिनिंग पर मेरा फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट आ जाएगा। अब जब मैं दोबारा से ये लूप चलाऊंगी द सेम थिंग, लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ। ये हमने चीज सारे के सारा जो कंसेप्ट किया था एक बार शिफ्टिंग का किया था बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये मेरी लिस्ट आ गई दिस। अब मैंने वही सारी चीज दोबारा रिपीट करनी है कि 45 यहाँ पर आ जाए, 23 तो फर्स्ट टाइम लूप में जा चुका है, और ये एलिमेंट्स दोबारा से शिफ्ट हो जाए। दैट मीन्स जितने टाइम्स मुझे एलिमेंट को शिफ्ट करना है उतनी बार मेरा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। लेट मी जस्ट टेक द सेम लिस्ट अगेन। How many elements to shift? Let's suppose 2. तो now you can see जो मेरे 2 elements है, that means 34 और 6 ये राइट में शिफ्ट हो गए। ये लूप मेरा 2 टाइम्स चला। 67 मेरा फर्स्ट इंडेक्स, फिर 78, फिर 54, फिर 67। If you want to execute again, let's suppose I am executing for shifting of 3 elements. Now see बेटा 3 elements means 34, 6 और 67 ये आपके राइट में शिफ्ट हो गए, प्लस रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके 78, 54 एंड 67 ये आपके बिगिनिंग में आ गए। ठीक है, आई होप आपका ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन। सबसे पहले हम लेंथ काउंट करेंगे। बिगिनिंग एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पर होगा उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया। आफ्टर दैट मैंने उसको लिस्ट के लास्ट इंडेक्स पर असाइन कर दी, एंड दिस लूप इज फॉर द shifting of the elements. I hope this concept is clear to you now and your doubts related to this program is clear. अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.